So we were studying about interferons. Interferons, अगर आप पीछे से रिकॉल करें, interferon is the part of acquired immune system और innate immune system. मुझे चैट में बताएं अगर आपको याद हो, पीछे आपने पढ़ा है interferons acquired immune system का पार्ट है या innate immune system का. These are different classes. Interferons classes are based on the source of the this interferon. If they are produced by lymphocytes and macrophages, they will call alpha interferon alpha. Beta is produced by fibroblast and epithelial cells, and gamma is produced by T cell. Activity is they binds to the host cell, that is human or any other organism, and they send a signal which to the nucleus, due to which transcription and translation occurs and interferon is produced. Interferons further binds to other host cells. यानी interferons directly viruses को kill नहीं करता, it will bind to other host cells, and those host cells produce antiviral proteins, due to which the viral multiplication will or translation will be stopped, and not virus specific. Interferons are not virus specific. This is our detailed diagram. Let me zoom it. Interferon is produced, released, and taken up by nearby cell, whereby original cell is not protected, but the recipient cell is protected. This is a very important concept. Interferons, first of all, interferons are produced by any virus infection or any other foreign particle when attack the body, and after that these attachment of virus sent a signal to the nucleus and interferons are produced. Now interferon does not directly kill a virus. Interferons will send a signal to nearby cells and the nearby cell will be protected. लेकिन जिस cells ने produce किया interferon वो वाले protect नहीं होंगे. Only the recipient cells will be protected. तो देखिए डायग्राम में आपको नजर आ रहा है डिटेल में. वायरस इन्फेक्शन, ये हमारे पास एक सेल है, कोई भी सेल, और ये उसका न्यूक्लियस है उस सेल में. When a virus attack the cell, uncoating occurs and the nucleic acid release. Due to the attachment of the virus to the cells, a signal is sent to the nucleus. और न्यूक्लियस में क्या है कि कुछ ऐसी जीन है जो कि इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करती हैं. दे विल प्रोड्यूस द इंटरफेरॉन. फिर ये देखिए इंटरफेरॉन प्रोड्यूस हो गया, सिंथेसिस ऑफ इंटरफेरॉन, यहाँ से इंटरफेरॉन रिलीज हुआ है. नाउ दिस इंटरफेरॉन will attach to the nearby cells. देखिए nearby cells के ऊपर receptors हैं, ये आपको पर्पल कलर के नजर आ रहे हैं. Interferons will attach to the receptors. अब सिग्नल इन इस अटैचमेंट की वजह से फिर सिग्नल जनरेट होगा. सिग्नल एक्टिवेशन ऑफ जीन्स, ये जी कुछ ऐसी जीन्स एक्टिव हो जाएंगी जो कि एंटीवायरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है. एंटीवायरल वायरल को डिस्ट्रॉय करने वाली प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं. ये देखिए वायरस का जीनोम डिस्ट्रॉय हो गया, ये आपको नजर आ रहा होगा. डिग्रेडेड वायरस न्यूक्लियस ब्लॉक वायरस रेप्लिकेशन, लेकिन इसकी खुद में मल्टीप्लिकेशन होगी. दिस इज वायरल न्यूक्लिक एसिड assembly of viruses. It will multiply and new viruses will be released, and new viruses will attack on the nearby virus nearby host cell, but this cell will be protected. ठीक है, आपको ये मैकेनिज्म समझ आ रहा है कि एक सेल है जो कि प्रोड्यूस करता है इंटरफेरॉन्स by the attachment of a virus, and then this interferon will attach to a nearby virus, nearby host cell. अब इस सेल के ऊपर जब भी कोई वायरस अटैक करेगा इट विल बी प्रोटेक्टेड, लेकिन ये खुद प्रोटेक्ट नहीं हुआ, इसमें वायरस की मल्टीप्लिकेशन हुई है और वायरस रिलीज हुए हैं. दिस इज हाउ द इंटरफेरॉन्स रिएक्ट टू द वायरस इन्फेक्शन. अच्छा, पीछे हम कम्प्लीमेंट की बात करें हैं बार बार. कम्प्लीमेंट क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ये सारा देख लेते हैं. थोड़ा सा रह गया आपका. Consist of approximately 26 blood proteins. तकरीबन ब्लड में ऐसी प्रोटीन्स होती हैं 26 के करीब जिसको हम कम्प्लीमेंट कहते हैं. प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, हेपेटोसाइट्स लिवर के सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं ये प्रोटीन्स. लिम्फोसाइट्स ये सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड मोनोसाइट्स प्रोड्यूस द कम्प्लीमेंट.
दे इन्वॉल्व इन डिफरेंट पैथवेज, कैस्केड रिएक्शन, स्टेजेस। ये देख लेते हैं इसकी सबकी पैथवेज हमारे पास कौन कौन से हैं। कंप्लीमेंट के जिसके ज़रिए कंप्लीमेंट जो है वो किसी भी इन्फेक्शन को स्टॉप करते हैं। क्लासिकल है, लेक्टिन है, अल्टरनेटिव है। क्लासिकल पैथवे में क्या होता है? क्लासिकल पैथवे एक्टिवेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी बाउंड टू माइक्रोब्स। तो आपको पता है कि जब भी कोई इन्फेक्शन या वायरस या पार्टिकल माइक्रोब अटैक करता है तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स एंड these antibodies attack to the foreign microbes. So जब भी कोई भी एंटीबॉडी अटैच हो जाएगी माइक्रोब की तरफ, ये हमारे पास हो जाता है क्लासिकल सिस्टम। इसको हम क्लासिकल कहते हैं। लेक्टिन में क्या होता है? एक्टिवेटेड व्हेन अ होस्ट सीरम प्रोटीन बाइंड्स a sugar in the wall of fungi and other microbes. So second complement, which is called lectin pathway, is activated only जो होस्ट सेल्स है वो बाइंड करेंगे जब कुछ फंजाई के सेल्स में या कुछ और ऑर्गेनिजम्स में एक शुगर प्रेजेंट होती है उनकी सेल वॉल में। उस शुगर को मैनन कहते हैं और होस्ट सेल्स इस शुगर को रिकॉग्नाइज करेंगे, होस्ट सेल्स इसको बाइंड करेंगे, तो जिसकी वजह से लेक्टिन पैथवे एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आता है थर्ड अल्टरनेटिव पैथवे। Alternative pathway is activated when complement proteins bind to cell wall or surface components of microbes. Alternative उस वक्त एक्टिव हो जब कोई भी complement protein, ये complement proteins कौन सी है? ये हमारे पास कोई हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है ये प्रोटीन्स। ये जब भी किसी माइक्रोब की सरफेस या सेल वॉल को बाइंड करेगी तो ऑल्टरनेटिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इन तीनों पैथवेज को आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ये हमारी बॉडी में डिटेल में दिखाया गया हाउ दिस थ्री कंप्लीमेंट पैथवेज अकर, देयर एक्टिवेटर्स एंड द कंप्लीमेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व। कौन कौन सी कंप्लीमेंट प्रोटीन्स हैं ये भी देख लेते हैं। these are complement pathways। पैथवेज कौन कौन से हैं, एक्टिवेटर्स कौन से हैं, होस्ट कंपोनेंट्स दैट इनिशियली बाइंड एंड कंपोनेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व। कौन कौन सी कंपोनेंट प्रोटीन्स हैं? अच्छा, इसको हम जो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं बार बार, ये कंपोनेंट प्रोटीन्स जो 26 प्रोटीन्स हैं इनको हम C1, C2, C3 इस तरीके से इनका हमने नाम रखा हुआ है इन कंपोनेंट प्रोटीन्स को। ठीक है। So classical first pathway is the classical pathway, which is rapid and efficient pathway in which this pathway activates complement fixing antibodies। अपने immunoglobulin से antibodies पढ़ी हैं, IgM है और IgG है। These become active sometimes microsurface components। और होस्ट हमारे जो होस्ट सेल हैं उसमें क्या है? C1 complex। कौन सी प्रोटीन है? C1 binds components protein involved, C1 complex, C4, C2, C3। Then हमारे पास lectin pathway है। This becomes active when the host cell bind with a sugar called mannans present in the fungi। Host components that initially binds mannans binding lectin। ये रिसेप्टर है जो कि mannans को बाइंड करेगा किसी भी फंजाई के सेल वॉल के साथ। और कौन से कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व है? C5, 6, 7, 8, 9 ये कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं किसमें? लेक्टिन पैथवे में। फिर आता है कि आपके पास अल्टरनेटिव। दिस इज द स्लो और लेस एफिशिएंट। सबसे एफिशिएंट हमारे पास क्लासिकल है और सबसे लेस एफिशिएंट हमारे पास अल्टरनेटिव है। बैक्टीरियल और फंजाई सेल वॉल, जब भी बैक्टीरिया या फंजाई की सेल वॉल है वो एक्टिवेट करेगी इस सिस्टम को, वायरसेस को या पैरासाइट सर्फेसिस, ये सारी दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग द अल्टरनेटिव पैथवे। विच प्रोटीन will active the host C3। होस्ट कंपोनेंट्स दैट इनिशियली C3 बाइंड करेगी। C3 के बाद अब आपके पास फैक्टर बी, फैक्टर डी, प्रोपर्डिन, ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। मेम्ब्रेन अटैक एंड कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे फैक्टर्स जब ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे तो बैक्टीरिया या फंगस या वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्टेजेस क्या है? किस कौन कौन से स्टेजेस हैं? फर्स्ट इज इनिशिएशन, second is amplification and cascade, next is polymerization,
और लास्ट इज मेम्ब्रेन अटैक। ये वन बाय वन देखते हैं। इनिशिएशन में क्या होता है? स्टेज वन इज इनिशिएशन। Initiation, the classical pathway begins when C1 component bind to antibodies bound to a foreign cell. So when a foreign particle, which can be virus or microbe, is bound to a antibody, जब ये आपके पास एंटीबॉडी फॉरेन पार्टिकल का एक मिक्सचर आ जाएगा, उस वक्त C1 कंपोनेंट एक्टिवेट होगा। यू कैन सी ओवर हियर इन द डायग्राम, फॉरेन सेल और मेम्ब्रेन ये है हमारे पास। ये आपको ऑरेंज कलर की सरफेस नजर आ रही है, एंड these greens are antibodies. Antibodies are attached to the foreign microbe and then C1 becomes activated. C1 देखें अटैच हो चुकी है, C1 कॉम्प्लेक्स बन गया है जिसमें C1 है, एंटीबॉडीज हैं और माइक्रोब्स की सरफेस है, एंटीबॉडीज बाउंड टू द माइक्रोब सरफेस। इस डायग्राम में देखें कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो गए। एम्प्लीफिकेशन एंड कैस्केड, दिस इज द सेकंड स्टेज। एम्प्लीफिकेशन का क्या मतलब है? यानी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, किसी भी सिग्नल्स इनहेंस हो गए, इसको एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। एंड कैस्केड कहते हैं पूरे रिएक्शन को कैस्केड। द C1 कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है? C1 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, एंटीबॉडी है विच इज अटैच्ड टू द माइक्रोब सरफेस। दीज थ्री कंपोनेंट्स मेक्स C1 complex. The C1 complex is an enzyme that activates a second series of components C4 and C2. यानी कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो अभी आपने पीछे पढ़ा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये this after binding the C1 to the antibodies which is already attached to the surface, this will act as an enzyme के तौर पे काम करेंगे और एक्टिवेट करेंगे किसको? C4 को and C2 को। When these have been enzymatically cleaved into separate molecules, they become a second enzyme complex. First वाला जब क्लीव हो जाएगा और separate molecules बन जाएंगे, again those separate molecules are act as enzyme that activates C3. At this same site, C3 binds to C5 and cleaves it to form a product that is tightly bound to the membrane. यहाँ डायग्राम में देख लेते हैं, ये फॉरेन पार्टिकल है, ये आपका सरफेस नजर आ रही है, C4, ये C2 आपने सबसे पहले देखा था, C1 जो है वो C2 C4 को एंजाइम के तौर पे एक्ट करेगा और इसको सेपरेट इस पूरे वो सेपरेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये देखें C2 C4 सेपरेट मॉलिक्यूल्स बन गए, इसी तरह C3 ये बस 3 मॉलिक्यूल्स बन गए। ये मॉलिक्यूल्स अगेन एक्ट एज एन एंजाइम और क्लीव कर देंगे C5 को, और C5 का फंक्शन क्या है? ये इन्फ्लेमेशन को मीडिएट करेगा। इन्फ्लेमेशन जिसमें आपने देखा था फीवर भी हो सकता है और कोई एडिमा भी कॉज हो सकता है। इन्फ्लेमेशन के आपने साइंस पीछे सिम्टम्स पढ़े। इवेंचुअली C5 क्या करेगा? डायरेक्टली किल नहीं करेगा माइक्रोब को, ये इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा बॉडी में। थर्ड स्टेप इज पोलीमराइजेशन। इसमें क्या है कि मोनोमर्स दे बिकम्स एक्टिव और मोनोमर्स पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। C5b is a reactive site for the final assembly of an attack complex. In series C6, C7 and C8 aggregate with C5 and becomes integrated into the membrane. जब C5 जो लास्ट स्टेप था, C5 अगेन अट्रैक्ट करेगा बाकी कॉम्प्लीमेंट्स को, जिसमें C6 है, 7 एंड 8 है, ये सारे के सारे एक एग्रीगेट बना लेंगे और इंटीग्रेट हो जाएंगे किसमें? सर्फ मेम्ब्रेन में। इसको पोलीमराइजेशन कहते हैं। दे फॉर्म अ सबस्ट्रेट अपॉन विच द फाइनल कंपोनेंट C9 कैन बाइंड। फिर C9 बाइंड करेगा लास्ट स्टेज पे। अप टू 15 ऑफ दीज C9 यूनिट्स रिंग द सेंट्रल कोर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तकरीबन कितने C9 के कितने कंपोनेंट्स होंगे? 15 के करीब C9 जो है वो अटैच होंगे। ये देखिए आपको नजर भी आ रहे होंगे, C9 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 C9, ये सारे के सारे इस सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच करेंगे और इसको हम कहेंगे पोलीमराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक प्रोटीन्स।
नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास मेम्ब्रेन अटैक है. द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज अ लार्ज डोनट शेप्ड एंजाइम that punctures small pores through the membrane leading to cell lysis. अब ये सारा का सारा अटैच है. ये जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स हैं C1 से लेके C9 तक, दीज आर ऑल अटैच टू द माइक्रोब सरफेस. ये माइक्रोब को अब कैसे किल कर रहे हैं? लास्ट स्टेज पे दे द फाइनल प्रोडक्ट, ये देखिए C9 ने एक एंजाइम C9 ने एक डोनट शेप बना दी है शक्ल, और यहाँ से ये, और इसे C9 अटैच किसके साथ है? मैं ये बैक्टीरिया के साथ, बैक्टीरियल सरफेस के साथ C9 अटैच है. एंड इट विल स्मॉल, दिस एंजाइम विल मेक स्मॉल पोर्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, जिसकी वजह से लाइसिस हो जाती है. जितना भी जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है. सो दिस इज हाउ द कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन्स वर्क. कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन्स 26 तक है, लेकिन इस रिएक्शन में आपने C9 तक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स देखी है. और कॉम्प्लीमेंट्स का जो फंक्शन है, इट डज थ्री थिंग्स. पहले तो मैंने देखा था कि C5 इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, C3A, C4, C5 ये सारे इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं. और इन्फ्लेमेशन का एक फायदा है, बॉडी में एडवांटेज आपने देखा था, फीवर होता है जिससे माइक्रोब्स किल होते हैं. उसके अलावा ऑप्सोनाइजेशन करता है. ऑप्सोनाइजेशन इज द मेकिंग स्मॉल पोर्स इनटू द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड लाइसिस अकर्स. ये कौन करता है? C3 भी करता है ऑप्सोनाइजेशन. फिर मैक किलिंग, मैक्रोजन एक्टिवेटिंग सेल्स, C5, C9, ये सारे के सारे C5 एंड C1 जो है वो मैक किलिंग करेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. अब आप मुझे बताएं, आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, और यहाँ से आपको अगर कहीं से समझ नहीं आ रही तो मैं उसको रिपीट भी कर दूंगी आज या कल या जब भी आप कहें. और इन सब लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आपको LMS के ऊपर मिल जाएगी. आप लोग अपने आप को माइक्रोबियल पैथोजेनिक्स के कोर्स में एनरोल करें, और वहाँ पे आपको हर चीज़ जो है वो मिल जाएगी. ठीक है, आई थिंक आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं लेक्चर को एंड करती हूँ, और जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है मैं वो अपलोड कर देती हूँ. आपने साइड बाय साइड वो सारी रिकॉर्डिंग्स देखनी है और लेक्चर को याद करना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए.